Hello Geminis and welcome to your bonus love reading for the year 2025. So देखते हैं कि year 2025 में आपके पर्सन की लव मैसेजेस या उनकी लव फीलिंग्स, उनके करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शंस आपको लेकर क्या होंगे. So as you know that this is a general reading, collective reading, so take only those messages that resonate to your situation and leave the rest. Also ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी. दिस इज़ फॉर द होल ईयर 2025. ओके, एंड इफ़ यू हैड अ कॉलिंग टू क्लिक ऑन दिस वीडियो देन दीज मैसेजेस आर फॉर यू. ओके, सो लेट्स सी मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनी. लेट्स सी मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनी कि आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं. लेट्स सी मैसेजेस फॉर द साइन ऑफ जेमिनी. कोडिपेंडेंसी. ओके, यू जो पहला मैसेज यहाँ पे आ रहा है, यू नीड, आप किसी किस्म के को डिपेंडेंट इशू में हैं, को डिपेंडेंसी रिलेशनशिप में हैं या किसी पर्सन के साथ हैं आप जो कि बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हैं इस रिलेशनशिप में एंड दे आर नॉट फुली फ्री एंड यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस को डिपेंडेंट रिलेशनशिप. Yes, it's a clear message that you need to release your ex. So I'll be honest over here, Geminis, that I'm getting a message over here that आपके person को addictions हैं and that is affecting your romantic life and you need to free yourself from all those negative emotions and उन person से आपको ख़ुद को दूर रखने की ज़रूरत है और आपको अपनी एनर्जी को रिन्यू करने की ज़रूरत है. रिन्यूअल की एनर्जी आनी चाहिए आप में. इट्स टाइम, the time has come to clear your energy. You need to release your ex and you need to keep an open mind. Okay, so maybe might be possible कि जिस person को या जिस तरह के person को आप अपना soulmate समझ रहे हैं, that is not your person. that person differs from your expectations. जो आपके mind में person है कि ऐसे person होने चाहिए, ऐसे person होने चाहिए, तो वो आपकी expectation से different हैं. Show me more messages for the sign of Gemini. Show me more messages for the sign of Gemini. Show me more messages for the sign of Gemini. We have the Moon, King of Cups, 10 of Cups, 5 of Cups, and the Queen of Cups. Bottom of the deck we have Emperor, Magician, and 8 of Wands. सो जिन पर्सन को आप माइंड में रख के ये रीडिंग देख रहे हैं और स्टार्टिंग में जो मैसेजेस आप लोगों के लिए चैनल हुए हैं, माइट बी पॉसिबल कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो इश्यूज़ में थे, ठीक है, बट आई ऑल्सो सी दैट यू टू आर डिवाइन काउंटर पार्ट्स, यू टू आर अ कपल. ओके, दिस इज़ कपल एनर्जी. किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स. इन पर्सन ने अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे हिडन रखे. माइट बी पॉसिबल कि इसीलिए आपको ये एनर्जी आई कि ये दिस पर्सन इज़ नॉट फुली ट्रांसपेरेंट अबाउट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, सो you should leave this person and you should choose another person. Or I see love is coming in your life because there will be an emotional fulfilling connection where the two of you will be equally reciprocating about the feelings and emotions. तो कोई ऐसा कनेक्शन आपकी लाइफ में आएगा जो एक स्टेबल लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप होगा. लेकिन ये पर्सन, अगर इफ़ यू वांट दिस पर्सन, योर पास्ट पर्सन बैक, then I see that this person will be regretting over their behavior in the long run. In the year 2025, this person will be regretting on what they did to you and how they messed up the things with you. सो इन पर्सन की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हैं ये नेचर में, और मैजिशियन है, तो आई सी दैट दिस पर्सन विल बी मैनिफेस्टिंग to have a communication with you with the 8 of wands. Okay, so this person will be coming back with some sort of a communication, forward movement, action. Show me Gemini's feelings. So show me Gemini's feelings towards this person. Show me Gemini's feelings towards this person. You could be dealing with another Gemini. The signs we have here are Cancer, Pisces, Scorpio.
कैंसर एंड एरिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. देन वी हैव जेमिनाई, योर एनर्जी. देन वी हैव द 5 of swords. You could be dealing with another Gemini, Libra, Aquarius. Okay, we have the 10 of swords, we have the page of swords. So this person is keeping tabs on you, this person is keeping an eye on you from afar. Also I see that there will be options when it comes in love. So there will be options, you will be having options, you will be having this person as well as another person in the long run, in the future. सो विद द 5 of swords, मुझे क्लियरली इस पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है कि इन पर्सन ने आपको बैक स्टैप किया, इन पर्सन ने आपको डिच किया. और 10 of swords है तो डेफिनेटली इनका बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार था आपके साथ. और राइट नाउ आपकी सिचुएशन तो मैं अच्छी फील नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि आप इनके साथ बैक स्टैप, आप इनसे इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हैं. लेकिन ये पर्सन भी सुख में नहीं है इस वक्त, बिकॉज जो किसी का सुख खराब करता है वो खुद भी दुख में ही होता है. सो राइट नाउ आई सी दैट दिस पर्सन इज हैविंग डीप पेन एंड रिग्रेट, बिकॉज जो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया है या इन्होंने आपको बैक स्टैप किया या जो भी, या जिस भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा है, ये पर्सन खुद भी इस वक्त डीप पेन से गुजर रहे हैं. आई कैन सेंस दिस एनर्जी विद द 10 of swords. एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज फीलिंग स्टक्ड. ओके, और आइदर बिकॉज ये आपकी भी एनर्जी, आप स्टक फील कर रहे हैं, इस सिचुएशन से मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप कोई ऐसा कनेक्शन चाहते हैं जिसमें आपको जस्टिस मिले, जिसमें आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, जिसमें आपको बैलेंस मिले. शो मी दिस पर्सन's नेक्स्ट एक्शंस टुवर्ड्स द जेमिनी. शो मी दिस पर्सन's नेक्स्ट एक्शंस टुवर्ड्स द जेमिनीज. Four of Cups, the Hangman, Four of Swords, and the Ace of Swords. Bottom of the deck, Queen of Pentacles, Knight of Cups, and the Knight of Wands. So this person knows that you bring a lot to the table. You have a very high vibrant energy, and they should have to match your energy by giving you equal give and take. Besides that, in the long run, I don't see this person taking action, but क्योंकि इनके दिल में ये बात चल रही है कि इन्होंने आपकी ऑफ़र रिजेक्ट की, तो ये आपको क्लैरिटी देने के लिए ज़रूर आएंगे. बिकॉज किंग ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, तो इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर ज़रूर होगी. और ये पर्सन आपको आपके साथ एक लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप बनाने के लिए आएंगे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, दैट इज़ द वाइफ ऑफ द टैरो. सो दिस पर्सन विल बी आस्किंग यू फॉर अ कमिटेड रिलेशनशिप. लेकिन अगर आप नियर फ्यूचर में देखना चाहें कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, तो ये पर्सन अभी हील करना चाहते हैं, आप भी इस सिचुएशन से हील करना चाहते हैं. सो यू आर वेटिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम दिस पर्सन. और जब तक ये आपकी तरफ अपॉलॉजी लेकर ना आए, और जब तक ये अपनी एनर्जी को, क्योंकि नाइट ऑफ वैंड्स है तो दिस इज़ द मोस्ट अनरिलायबल एनर्जी, ये अपनी एनर्जी को क्लियर करके आपकी तरफ ना आए, डोंट गो टूवर्ड्स दिस पर्सन. ओके, डोंट टेक, मतलब आप खुद से एक्शन मत लें इनको, जस्ट वेट फॉर दिस पर्सन टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू. शो मी दिस पर्सन's current feelings towards the current feelings and energies towards the Geminis. Show me this person's current feelings and energies towards the Geminis. Queen of Swords, and we have the Hierophant, and bottom of the deck we have the King of Cups, the King of Wands, the Two of Wands, and the Nine of Wands. So in person ने definitely healthy boundaries maintain की आपसे, आपको बैक स्टैप भी किया, आपसे हेल्दी बाउंड्रीज भी मेंटेन की, और आपको ये भी, आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के ये भी कह दिया कि इन बाउंड्रीज़ को क्रॉस ना करना. लेकिन ये पर्सन वेट कर रहे हैं राइट टाइम का तो आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी में हेरोफेंट आया है और ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप ऑफर आपको देना चाहते हैं. यू कुड बी डीलिंग विद द टॉरस. सो लॉन्ग रन में इनकी तरफ से ये इस वक्त हो सकता है कि रीति रस्मों रिवाज की वजह से फंसे हुए हैं और ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन लॉन्ग रन में मैं इनकी तरफ से आपकी तरफ एक्शन आते हुए देख रही हूँ. ठीक है. और ऑल्सो अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, देन दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू.
Show me the outcome of the situation. 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 So we have High Priestess, Pisces energy, Taurus, Virgo, Capricorn with the, we have 5 of Pentacles, Ace of Cups, and we have this 8 of Pentacles. And bottom of the deck we have 3 of Pentacles, Justice, Libra energy and Tower. So in person को कोई spiritual awakening होगी regarding you and this connection. और ये थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ के ही आपको ये जस्टिस दे सकेंगे. सो ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से रिमूव करने के बारे में प्लान बनाएंगे इन द ईयर 2025. एंड आई ऑल्सो सी दैट दिस पर्सन विल बी फीलिंग लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय द थर्ड पार्टी एंड दिस पर्सन विल बी कमिंग टूवर्ड्स यू. बट डेफिनेटली इनको आपकी वर्थ तभी रियलाइज़ होगी जब थर्ड पार्टी भी इनके साथ वही व्यवहार करेगी जो इन्होंने आपके साथ किया. एंड लॉन्ग रन में आउटकम में मैं इनको आपकी तरफ एक्शन लेते हुए देख रही हूँ, चीज़ों पर वर्क करते हुए देख रही हूँ, हार्ड वर्क और एफर्ट डालते हुए देख रही हूँ. ऑल्सो दिस पर्सन विल बी ऑफरिंग यू देयर कप ऑफ लव. So in the long run, I see that this person will be giving you justice and this person will be giving you a love offer. Because क्योंकि इन पर्सन के दिल में शुरू में ही किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स दोनों आया था, तो इन पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस हैं और ये वन साइडेड कनेक्शन नहीं है. You also have feelings and emotions and they also have. So this person will be taking action towards you in the long run. So I will leave this reading over here. Thank you so much, Geminis. Please hit like, share and subscribe. And I will see you in the next. Till then, take care and bye.